Good morning, students. Today we are going to take the topic from page number 30. How many classes should we have from Statistics for Economics book? The number of classes is usually between 6 and 15. The classes which we generally take in the frequency distribution table that varies from 6 to 15. In case we are using equal sized class intervals, the number of classes can be calculated by dividing the range. If we want to take the equal classes, then we have to divide it by the range. And how to find out the range? The difference between the largest number and the smallest number, and we have to divide that by the size of the class interval, what size we are keeping of the class interval. As we know that 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, like this we have seen the frequency distribution table. Now from 0 to 10 we know that what is the difference between these two range. 0 to 10, 10 difference. Similarly 10 to 20, 10 difference. So the class interval, that means difference from the first limit and the second limit, is known as the class interval. Now next topic we are moving to is what should be the size of each class. अब हर class का size कितना होना चाहिए, वो कैसे decision लिया जाएगा? The answer to this question depends on the answer of the previous question. Given the range of the variable, we can determine the number of classes once we decide the class interval. When class interval is decided, then according to that class interval, up to how many number of the data is given in the variables, according to that we decide the number of class intervals. Thus we find that these two decisions are interlinked. We cannot decide on one without deciding on the other. That means first of all we have to decide one and then the other can be decided. So that means both are interrelated to each other. Now example 4 is mentioned. We have the given number of classes as 10. मान लो कि हमें जो क्लासेस हैं वो टोटल 10 लेनी है. तो गिवन द वैल्यू ऑफ रेंज इज 100. अगर गिवन रेंज हमारे पास 100 है तो 100 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आया? 10. The class intervals are automatically 10. Note that in the present context we have chosen class intervals that are equal in magnitude. That means the extent of that interval, class interval, is similar. However, we could have chosen class intervals that are not of equal magnitude. हम ऐसा भी चूज़ कर सकते थे जिसका क्लास इंटरवल सेम नहीं होता. जैसे हमने कई बार ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखी है 0 to 5, 5 to 7, then 7 to 10, then 10 to 15. So अब इस वाले में जो अपना क्लास इंटरवल है, कभी 5 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है. तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो अलग अलग क्लास इंटरवल आ रहा है, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है. इन दैट केस द क्लासेस वुड हैव बीन अनइक्वल विड्थ. तो क्लासेस जो होंगी उसकी विड्थ जो होगी, उसकी जो एक्सटेंट होगी, मैग्नीट्यूड जो होगा वो डिफरेंट होगा. नाउ नेक्स्ट इज हाउ शुड वी डिटरमाइन द क्लास लिमिट्स. हमें क्लास लिमिट्स कैसे डिटरमाइन करनी चाहिए? क्लास लिमिट्स शुड बी डेफिनेट एंड क्लियरली स्टेटेड. जनरली ओपन एंडेड माने तो जैसे 70 से ऊपर नहीं होना चाहिए और लेस देन 10 नहीं होना चाहिए. इन दोनों के बीच में ही क्लास इंटरवल होनी चाहिए. द लोअर एंड upper class limit should be determined in such a manner that frequencies of such classes tend to concentrate in the middle of the class interval. यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट इस तरीके से डिसाइड की जानी चाहिए कि हम लोगों का जो फ्रीक्वेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल होता है उसका हमें कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए, उसका मिडिल पार्ट, मतलब उसके सारे डाटा हमारे उसमें कंसाइज हो जाएँ. अब इसमें दो तरह की सीरीज़ बनाई जा सकती हैं हमारे. एक तो हो सकता है इंक्लूसिव सीरीज़ और दूसरी हो सकती है एक्सक्लूसिव सीरीज़. अब जो इंक्लूसिव सीरीज़ होती है वो कैसे हो सकती है? जैसे 0 to 10 हमने लिया, फिर हमने लिया 0 से 10 के बाद 11 to 20, फिर हमने लिया 21 to 30. तो इसमें ऐसे करने से क्या होगा कि जो भी हमारा हम नंबर लेंगे इस रेंज के बीच में, जैसे 0 से 10 के बीच में जो भी नंबर होगा वो आएगा. अब अगला वाला जो हमारा नंबर होगा वो 11 से 20, तो अगली रेंज हमारी 11 से 20 है, तो इसके बीच के ही नंबर आएंगे. तो 0 से 10 तक में हमारा सारा डाटा 10 तक का आ गया. अब 10 से ऊपर का जो डाटा जाएगा वो 11 वाली कैटेगरी में आ जाएगा, 11 से 20 में. तो अब ये देखो कि अगर कोई फिक्स नंबर वाला सीरीज़ है, जैसे हम डिस्क्रीट सीरीज़ कहते हैं, उसमें जनरली हमारे सेपरेट और डिस्टिंक्ट नंबर्स ही आते हैं, उसमें इन बिटवीन नंबर्स नहीं आते हैं, पॉइंट्स वाले, डेसिमल वाले नंबर नहीं आते हैं.
तो पॉसिबल है कि 0 से 10 में वो आ जाएगा पूरा पूरा डाटा, और आगे वाला डाटा 10.5 10.6 तो होगा ही नहीं क्योंकि सीरीज़ डिस्क्रीट की है। तो अगला वाला जो डाटा होगा 11 से 20 का होगा, तो वो 11 से 20 वाली डिटेल ही उसके अंदर, डाटा ही उसके अंदर आएगा। फिर अगला डाटा 21 से 30 आएगा। तो इस तरह से ये वाला जो इंटरवल होता है ये इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल कहलाता है। इसके अलावा एक 0 से 10, 10 से 20। अब इसमें क्या करा हमने, 0 से 10 और 10 से 20 जो सीरीज़ बनी और 20 से 30 की जो सीरीज़ बन रही है, इसमें हम रिपीटेशन तो कर नहीं सकते किसी भी डाटा का। तो 0 से 10 में हमने जो भी डाटा ले लिया है, हम 10 से 20 में से नहीं लेंगे। 10 के आसपास का कोई डाटा है तो 10 वाली फिगर में ऊपर चला जाएगा, तो वो नीचे 10 वाले में नहीं आएगा। तो अभी हमें डिसाइड करना है हम उसकी अपर लिमिट में उसको इंक्लूड करेंगे कि उसके लोअर लिमिट में इंक्लूड करेंगे, लेकिन एक बार ही उसका इन्वॉल्वमेंट होना है। तो हमने एक्सक्लूड किया ना उसको अगली वाली सीरीज़ के अंदर से। 0 से 10 में अगर हमने 10 तक का डाटा ले लिया है तो 10 से 20 तक में वापस 10 वाला डाटा इस सेकंड वाली सीरीज़ में रेंज में नहीं आएगा, तो एक्सक्लूड कर रहे हैं। इस वजह से इस वाली सीरीज़ को हम एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ सीरीज़ कहते हैं। तो इस तरीके से दो तरह की आपके पास सीरीज़ होती हैं, इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ सीरीज़ और एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ सीरीज़। ये तो हो गया। अब इसमें आ रहा है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल जो हमारे पास होते हैं, जो भी हमने बोला कि हम डिस्क्रीट सीरीज़ में तो पॉसिबल हो जाता है कि फिक्स कंप्लीट होल नंबर होता है तो वो उसमें इंक्लूड हो जाता है, लेकिन जैसे मान लो इन बिटवीन नंबर होगा तो वो कैसे होगा, जनरली हाइट वेट ये पॉइंट्स में डेसिमल्स में आ ही जाते हैं। तो इस केस में जो भी हमारी सीरीज़ बनेगी वो जैसे 30 किलोग्राम से 39.99 किलोग्राम हुआ, या फिर 40 किलोग्राम से 49.99 किलोग्राम हुआ, तो इसमें जो सीरीज़ बनाई जाती है वो 30 किलोग्राम विद इन अंडर 40 किलोग्राम, फिर 40 किलोग्राम से अंडर 50 किलोग्राम तक में, 50 किलोग्राम से अंडर 60 किलोग्राम तक में। तो अंडर 60 बोल देने से 50 से ऊपर वाला और 60 के नीचे नीचे वाला तक का सारा आ जाता है। ऐसे अगली सीरीज़ बनेगी 60, तो 60 वाला इसमें शामिल हो जाएगा, और 60 से ऊपर 60 और 60 से ऊपर वाला और बिलो 70 वाला इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल का डाटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसमें एक फॉल्ट हमें दिखाई देगा कि हम जब ये बनाएंगे तो इसमें कई बार ऐसा हो सकता है कुछ डाटा में फिगर में, जैसे अभी एक टेबल आपको नीचे दिया हुआ है 3.4 वाला, इसमें 800 से 899 तक का 50 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का इनकम दिया हुआ है, फिर 900 से 999 का, फिर 1000 से 1099 का। अब ये जो फिगर हमें दे रखा है इसमें हम देखेंगे कि ₹1 का गैप है, 800 से 899, फिर उसके बाद 900 से 999, फिर 1000 से 1099। अब ये जो 1 का डिफरेंस है इसकी वजह से कंटिन्यूटी तो बनी नहीं, बीच में ब्रेक आ गया। तो इस ब्रेक को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है कि पहली सीरीज़ का जो अपर लिमिट है और सेकंड सीरीज़ का जो लोअर लिमिट है इसका पहले डिफरेंस निकाला जाता है। ये तो वैसे भी दिख रहा है कि 1 है, लेकिन मान लो कोई सीरीज़ ऐसी हो जिसमें क्लियरली नहीं पता चल रहा हो, तो फिर हम उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो जैसे इसका डिफरेंस निकाला तो 1 आया। अब इसको डिवाइड बाई 2 करते हैं। डिवाइड बाई 2 करने से कितना आएगा, 0.5 आएगा, क्योंकि ये 1 है। तो ये 0.5 एक सीरीज़ में माइनस कर दिया जाता है और दूसरे लिमिट के अंदर प्लस कर दिया जाता है। ये कहलाता है एडजस्टमेंट इन क्लास इंटरवल। इस तरीके से एडजस्टमेंट करके हम कोई भी डाटा इसमें जो इन्वॉल्व हो सकता है उसे एक्सक्लूड नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे या नहीं होगा वो इस तरीके से। तो इस एडजस्टमेंट से क्या होगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। हमने जहाँ ड्रॉप किया, जैसे मान लो हमने 0 से बिगिन किया तो 0 से हमने 10 पर ड्रॉप किया और अगला हमने 11 से पिक किया तो 11 से 20 पर ड्रॉप किया। तो अब ये 10 से 11 के बीच में 1 का गैप है, तो हमने क्या किया, 10.5 अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया और लोअर लिमिट में हमने 0.5 माइनस कर दिया। तो 11 था, अगली सीरीज़ हमारी कैसे हो गई, 0.5 माइनस करने से 10.5, तो 0 से 10.5, फिर नेक्स्ट वाली सीरीज़ 10.5 से 20.5, इस तरीके से बनेगी। तो इस तरीके से कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाती है और डाटा उसके अंदर रह जाता है, मतलब किसी ना किसी कैटेगरी में आ जाता है, चाहे अपर लिमिट में लेके लो या लोअर लिमिट में लेके लो। तो ये कहलाता है एडजस्टमेंट इन क्लास इंटरवल।
I would expect that you will reread all these things, and if any questions or queries are there, you will definitely place them. I have given you the MCQs for solving from the same chapter, so I suppose you must have solved that. So, if any queries are there from that too, then please put it forward. Thank you.